بولا قرآن سے دکھا دو، میں $5,000 دوں گا۔ $5,000 پاکٹ میں ہے؟ لو جی، شاداب کنجری کو پہلے ڈالر دکھاؤ تو پھر یہ آپ کو ریفرنس دے گی محمد کے بنی اسماعیل ہونے کا قرآن کے بیچ میں سے۔ اس کے علاوہ نہیں یہ ریفرنس دے گی، اس کا موڈ نہیں ابھی بن رہا، پہلے اس کو نوٹ دکھاؤ۔ نوٹ تجھے دکھاتا ہوں، اور وہ بے دخل جو بیٹا ہے زید، اس کو بھی نوٹ ملے گا، اور جتنا مرضی جھوٹ کا ناچ گانا کر کے تم جھوٹے نبی، چیئرمین ہیرا منڈی مودے کنجر کو بچانے کی کوشش کر لو، تم نہیں بچا سکتے۔ وہ جھوٹا نبی تھا، اس کو تم نبیوں کی جو لڑی ہے، جو نسل ہے، اس کے بیچ میں کسی طرح فٹ نہیں کر سکتے۔ لیں جی، یہ میں نے چیلنج ان کو دے کے، اور پورے عالم اسلام کو، شاداب احمد کو اور زید پٹیل کو یہ چیلنج دے کے کہ قرآن کے بیچ میں سے محمد کے بنی اسماعیل ہونے کا ریفرنس دے دو۔ میں نے ان کے گلے میں، پورے عالم اسلام کے گلے میں ایسی ہڈی پھنسائی ہے، نہ اس کو یہ نگل سکتے ہیں، نہ اس کو یہ اگل سکتے ہیں، کیونکہ پورے قرآن میں بھی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا نا، میں نے مذاق نہیں کیا تھا، کہ بینجامن نتن یاہو جو اسرائیل کا لیڈر پرائم منسٹر ہے، اس کو محمد کا باپ تمہیں بنانا پڑے گا محمد کو نبی ثابت کرنے کے لیے۔ میں نے مذاق نہیں کیا تھا۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، سارے انعام، ساری نبوتیں، سارے فضائل، سارے تحائف، ساری برکتیں، ساری رحمتیں صرف بنی اسرائیل کے پاس ہیں پورے قرآن کے مطابق۔ اگر تم نے محمد کو کہیں نبی بنانے کی کوشش بھی کرنی ہے تو تمہیں پہلے اس کا اسرائیلی باپ ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ ایسی ہڈی ہے، نہ اس کو تم نگل سکتے ہو، نہ تم اس کو اگل سکتے ہو۔ یہ دونوں کنجریاں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جھوٹ کے ایسے لٹکے جھٹکے اور ٹھمکے قرآن کے بیچ میں سے یہ لگائیں گی آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، کہ دیکھو اس آیت میں ابراہیم لکھا ہوا ہے، اس آیت میں ابراہیم لکھا ہوا ہے، یہاں سے ثابت ہو گیا کہ محمد بنی اسماعیل میں سے تھا۔ نہیں، ابراہیم کے 8 بیٹے تھے۔ تم اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ بھی کرو گے ابراہیم کے نام کے ساتھ، تو تمہیں پھر بتانا پڑے گا کہ ابراہیم کے 8 بیٹوں میں سے کس بیٹے میں سے محمد تھا۔ ایک جھوٹ بولو گے، اس جھوٹ کو چلانے کے لیے، چھپانے کے لیے تمہیں 1000 اور جھوٹ ساتھ ملانے پڑیں گے۔ کتنے جھوٹ بول لو گے محمد کو نبی ثابت کرنے کے لیے؟ اور ہاں، $5,000 تمہارے محمد کی نبوت کی قیمت جو میں نے لگائی تھی، اس کی قیمت ایک ٹھینگا بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جھوٹا نبی ہے۔ لیکن تم نے کیا ہیلا بہانہ بنایا؟ بلی کو چھچڑوں کے خواب۔ پہلے نوٹ دکھاؤ، پھر ان کا موڈ بنے گا ریفرنس ڈھونڈنے کا۔ تم قیامت تک ریفرنس نہیں ڈھونڈ سکتے، جھوٹا نبی ہی رہے گا۔ جی، انہوں نے ڈیوٹرانومی کی کتاب میں سے ڈیوٹرانومی 18:18 کا ریفرنس دیا کہ موسیٰ کی مانند موسیٰ کے بھائیوں میں سے موسیٰ کی مانند نبی ہوگا تو وہ محمد ہے۔ اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیوٹرانومی کی کتاب شروع سے لے کے آخر تک اسرائیلیوں سے مخاطب ہے، اور موسیٰ خود بنی اسرائیل کے قبیلے لاوی کا سردار تھا، اس کے 11 اور بھائی ہیں، اس 12 قبیلوں میں پورا بنی اسرائیل آتا ہے۔ اور صرف اس کتاب میں، ڈیوٹرانومی کی کتاب میں، میں نے تمہیں چیلنج دے کے آلریڈی شکست دے دی ہوئی ہے، شکست فاش، کہ اس پوری کتاب میں
बनी इसराइल के 12 कबीलों के भाई एक दूसरे को भाई कह रहे हैं, रिश्तेदार अजीजदार कह रहे हैं, और वो रेफरेंस उस पूरी किताब में 40 से ज्यादा मर्तबा आए हैं और एक मर्तबा भी वहां पे बनी इस्माइल का जिक्र नहीं है। जाओ क़यामत तक ढूंढ के देख लो, जिस किताब का तुम रेफरेंस दोगे उस किताब से तुम्हें शिकस्त पड़ेगी, उस किताब से तुम्हें फेंटी पड़ेगी तुम्हारे झूठ को। फिर जी उसका अपने व्यूअर्स को धोखा देने के लिए क्या कर रहा है? चैलेंज मैंने ड्यूटरोनॉमी की किताब में से दिया है, सारा कॉन्टेक्स्ट बनी इसराइल के बारे में है, तो अपने व्यूअर्स को धोखा क्या दे रहे हैं? जेनेसिस की किताब से रेफरेंस देके, पैदाइश की किताब से रेफरेंस देके, और वहां पे बनी इब्राहिम का जिक्र करके कि उसके 2 बेटे थे। उसका इस कॉन्टेक्स्ट के साथ ताल्लुक ही नहीं है, गैर जरूरी है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तुम बात कर रहे हो। इस तरह तो हम सब भी आपस में भाई हैं आदम की औलाद होते हुए। यहां पर बात हो रही है ड्यूटरोनॉमी की किताब में बनी इसराइल की। खुदा इसराइल से मुखातिब है, बनी इब्राहिम से नहीं। और अगर तुम पैदाइश की किताब में भी जाओगे तो एक्स मुस्लिम समीर ने वहीं पे तुम्हारा नक्खू ठप दिया था, ये क्या कि पैदाइश की किताब में सारी नबूवतें और सारा वादा खुदा का, नबियों का इसहाक से है, इस्माइल से नहीं है। और यही मैंने बाद में चैलेंज कुरान से भी किया था। सो पैदाइश की किताब में से भी तुम हार गए, अब मैंने कुरान में से तुम्हें चैलेंज दिया हुआ है, जो तुम्हारी किताब है, जिसको तुम मानते हो, प्रेजेंट फैब्रिकेटेड अवेलेबल कुरान, उसमें से कोशिश करके देख लो, तुम्हें इसमें भी फेंटी पड़ेगी। जितना मर्जी डांस कर लो झूठ का, जितना मर्जी नाच गाना कर लो झूठ का, मुदा कंजर चेयरमैन हीरा मंडी वो कंजर ही रहेगा। इस वीडियो की शुरू में मैंने आपसे वादा किया था कि इन कंजरियों की ख्वाहिश पे, शादाब अहमद और ज़ैद पटेल की ख्वाहिश पे कि नोट, पहले नोट दिखाओ फिर इनका मूड बनेगा, इनकी इस ख्वाहिश के मुताबिक मैं इनको नोट दिखा रहा हूँ। और ये नोट है मोहम्मद की तरफ से। कैसा लगा झटका? ये नोट मोहम्मद की तरफ से है और ये नोट भी इनके गले में ता क़यामत हड्डी बन के फंसा रहेगा। और मैं इनसे कहूंगा कि ये नोट सुनने के बाद हर एक मुसलमान जो सुन रहा है वो मूड बनाए इस्लाम छोड़ने का, वो मूड बनाए सच्चाई को कबूल करने का। जी इस हदीस के मुताबिक, पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये हदीस हमें हदीसों की किताब में इस नंबर के साथ मिल नहीं रही, इसलिए मैं पहले यह क्लियर कर दूं, ये मोहम्मद मोहसिन अली खान की कलेक्शन जो हदीसों की है उसमें 2 तरह की उसने कलेक्शन की हुई है, एक वॉल्यूम्स की शक्ल में और एक उसने समराइज्ड एक ही किताब, मोटी जिल्द वाली मोटी किताब सऊदी अरब से शाया हुई। ये वो वॉल्यूम वाली सही अल बुखारी नहीं है, ये उसकी जो एक समराइज्ड उसने एक वॉल्यूम के बगैर सही अल बुखारी की कलेक्शन बनाई हुई है। ये उसमें से हदीस का चैप्टर 28 और उसका हदीस का नंबर 1472 है। आपको इस नंबर के साथ शायद ये हदीस बाकी किताबों में ना मिले, ये आपको मोहम्मद मोहसिन अली खान में इस नंबर के साथ मिलेगी। दूसरी हदीसों की किताबों में शायद किसी और नंबर के साथ हो। ये मैं पहले क्लियर कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मुसलमान कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि ये हदीस का नंबर दुरुस्त नहीं है, तो मैं पहले ही बता रहा हूं आपकी हदीसों की किताबों में भी मुख्तलिफ स्कॉलर्स की मुख्तलिफ कलेक्शंस और मुख्तलिफ अशात मौजूद हैं, तो उनमें नंबर्स का फ़र्क आता है। तो इस हदीस के मुताबिक मैं मोहम्मद के मुंह से मुसलमानों को बताने लगा हूं कि मोहम्मद के आबाओ अजदाद कौन थे। मोहम्मद काफरों में से भी था और मोहम्मद कंजर भी था। ऐसे नहीं मैं उसे कह रहा,
कि वो चेयरमैन हीरा मंडी है, वो चेयरमैन कंजर मोहल्ला है, तो उसको तुम नबियों की लड़ी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, तुम उसको झूठा नबी कह सकते हो, मुद्दा कंजर कह सकते हो, तो ठीक है। इस हदीस के मुताबिक मोहम्मद के सहाबी मोहम्मद को ये कह रहे हैं कि क्यों ना हम शायरी करें उन काफरों के खिलाफ, ऐसी शायरी लिखें और उनको हम उनकी बेइज्जती करें। तो आगे से मोहम्मद का जवाब मैं आपको पढ़ के सुनाने लगा। द प्रॉफिट सेड, व्हाट अबाउट द फैक्ट, तो इस सच्चाई का क्या, दैट आई हैव कॉमन डिसेंट विद देम, मेरे और उन काफरों के आबाओ अजदाद एक ही हैं, यानी मैं उन काफरों में से ही हूं जिनके खिलाफ तुम शायरी करना चाह रहे हो, जिनके खिलाफ तुम कंजर पुना करना चाह रहे हो, मैं उन कंजरों काफरों में से ही हूं। आप इस चैप्टर का टाइटल भी देख लें, कि किसी के आबाओ अजदाद को गाली ना दो। तो मोहम्मद उसकी मिसाल क्या दे रहा है, ओ उन काफरों के और मेरे बाप दादा एक ही हैं। अब आगे से देखें सहाबी का जवाब देखें, I shall take you out of them as a hair is taken out of dough। कि वो सहाबी कह रहा है कि आप तो मोहम्मद इकरार कर बैठे हो, आप काफरों में से हो, तो मैं आपको निकाल लूंगा जैसे मक्खन में से बाल निकलता है, मैं ऐसे आपको काफरों में से निकाल लूंगा। यही काम आज का मुसलमान भी कर रहा है, यही काम शादाब अहमद और जैद पटेल भी कर रहे हैं कि मोहम्मद कह रहा है मैं काफरों में से हूं, ये उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं साबित करने की कि नहीं, वो काफरों में से नहीं है। तो बनी इस्माइल दूर की बात, मोहम्मद के काफर माँ बाप ढूंढो। इससे साबित होता है कि मोहम्मद एक झूठा नबी था। और ये नोट मैंने तुम्हें दिखा दिया है, अब मूड बनाओ इस्लाम छोड़ने का और सच्चाई को कबूल करने का।